I hope my screen is visible. I'm not sure. Let me just stop and reshare it again. Screen two. Yeah. Okay. All right. So I believe my screen is visible to you all. And let's begin. So yesterday we continued with this one. I will just take it back. I think this is the last slide. So I'll quickly recap it. So we talked about firewall, DDoS, NSGs, security scenarios, authentication, authorization. We talked about Active Directory, multi-factor, Azure security. I think up to this point we talked about like security scenarios and all those things. Azure policies, initiatives, and all those things. Also, we talked about little bit. So we'll quickly go through. Uh, so this was about firewall. This slide was about DDoS protection. We understood what is the DDoS attack and what is the protection, how it can protect, etc. We discussed about the network security group, how it can secure your virtual network. So we discussed about these, and then we talked about authentication and authorization, and we understood what is the difference between these both. तो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का कॉन्सेप्ट आई थिंक आप लोग को जो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था, आई थिंक यू कैन कीप इन दैट इन योर माइंड टू आंसर in any question in future. Then we talked about Azure Active Directory, authentication, SSO, application management, B2B, identity service and device management. तो ये कुछ uses होते हैं Active Directory के, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था. Then we understood about how the Azure Directory or Active Directory or Entra ID, in another words, now new name is Entra ID. So we discussed about it, that how we can use it for multiple organizations or for the organization in the hybrid environment, etc. So it basically offers, like identity and access management, and it can secure your resources, it can secure your application on-premise environment. So these are some of the uses, and we can have two type of resources. One is external resource such as like Microsoft 365, Azure portal, and like any software as service application, and internal resource like application on your corporate network, intranet, application, etc. तो बेसिकली सिंगल साइन ऑन सॉल्यूशन है जो कि सब जगह काम करेगा, चाहे वो एक्सटर्नल एप्लीकेशन हो, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो, इंटरनल एप्लीकेशन हो, या कोई सॉफ्टवेयर एज सर्विस सॉल्यूशन अवेलेबल हो. ओके, एंड yeah, that's it about it. And then we talked about multi factor authentication. तो उसको हमने एग्जांपल से भी समझा था कैसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन काम करता है. ठीक है, सो इट्स लाइक सेकेंड लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन along with the username and password. ठीक है, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट Azure Security Center. तो इसमें हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. Security Center is monitoring service basically offered by Azure, and it provides the threat protection across all your services both in Azure and on premises. So इसका ये होता है कि threat detection and protection करता है basically. तो let me change my pen color. Okay, so threat का protection करेगा. Yes, definitely it's going to detect and protect it. So across all your services, both in Azure and on premises, because in hybrid scenario, you may have resources in your company as well as in Azure. It is available in two tier. तो एक तो free tier है जिसमें आपको assessment और recommendations ये provide करेगा, ठीक है. और दूसरा आपको मिलेगा standard, which will be definitely the paid one, which will have a full suite of security related services including continuous monitoring and threat detection. ठीक है, इसमें वो डिटेक्ट करेगा, असेसमेंट करेगा और आपको रिकमेंडेशन देगा. इसमें वो कंटिन्यूअस मॉनिटर करेगा और डिटेक्ट भी करता रहेगा. और एक और फीचर मिलेगा आपको, जस्ट इन टाइम एक्सेस कंट्रोल. और जस्ट इन टाइम एक्सेस कंट्रोल बेसिकली
पीरियोडिक एक्सेस होता है। ये एडवांस फीचर है जिसमें कि आप यूज़र को प्री डिफाइंड शेड्यूल के लिए एक्सेस दे सकते हैं। जैसे कि हमारा कोई पार्टनर है या हमारा कोई कॉन्ट्रैक्टर है, वेंडर है, उसको हमें एक्सेस देना है फॉर 24 आवर्स, तो उसके किसी यूज़र को हम एक्सेस दे सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट के पर्टिकुलर रिसोर्स का फॉर दैट विंडो। तो दैट इज़ कॉल्ड जस्ट इन टाइम एक्सेस कंट्रोल, ठीक है? Azure Security Center user scenario is like it is used for incident response जिसमें detect, assess and diagnose वाला part रहता है and implement recommendations। तो सिक्योरिटी सेंटर का मेन यूज यही होता है कि एनवायरनमेंट को ऑलवेज यू हैव टू कीप इट सिक्योर एंड अवेलेबल टू यूजर्स। Okay, so let's move to next slide. Now we'll talk about what is the key vault. की वोल्ट आपका पासवर्ड सिक्योर करने का या पासवर्ड रखने की एक जगह है। सो इट्स लाइक वॉलेट ओनली, ठीक है, जिसमें आप पासवर्ड को सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो की वोल्ट इज अ सीक्रेट स्टोर, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड क्लाउड सर्विस फॉर स्टोरिंग एप्लीकेशन सीक्रेट्स। कोई से भी सीक्रेट्स आप मेंटेन कर सकते हैं। इसमें हो सकता है आप एप्लीकेशन से रिलेटेड, जैसे कि डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग हो गई, ठीक है, यूज़र नेम, पासवर्ड हो गया, ठीक है? तो इनको आप सीक्रेट्स मान सकते हैं, इनको आप स्टोर कर सकते हैं। की वोल्ट हेल्प्स यू कंट्रोल योर एप्लीकेशंस सीक्रेट बाय कीपिंग देम इन सिंगल सेंट्रल लोकेशन, ठीक है? तो इसको सीक्रेट्स को आपकी सिंगल लोकेशन पे मेंटेन करके वो रख सकता है ताकि आपके डेवलपर्स को वगैरह कोई प्रॉब्लम ना हो एंड दे कैन रीच आउट बाय द की and they can use that password which is associated with the key without even knowing about the password, ठीक है। तो इस तरीके से वो सीक्रेट मेंटेन करने के लिए काम आता है बाय कीपिंग देम सिंगल सेंट्रल लोकेशन एंड प्रोवाइडिंग सिक्योर एक्सेस, परमिशन कंट्रोल एंड एक्सेस लॉगिन। तो बेसिकली उसमें ये बेनिफिट हमें मिलता है कि किसने कब कौन-सी सीक्रेट की को एक्सेस किया वो रिकॉर्ड रहेगा हमारे पास में और उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि ही कैन रीड ओनली और राइट और चेंज और डिलीट। तो जो भी रिलेटेड परमिशन है, एक्सेस रिलेटेड परमिशंस हम उसको दे सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मे बी वन और मोर पर्सन फ्रॉम द इंटर आईडी यूज़र बेसिकली। एंड एक्सेस लॉगिंग भी हमारे पास होता है कि कितनी बार उसने उसको एक्सेस किया है, वो रिकॉर्ड भी हमारे पास मेंटेन होगा। तो वो पासवर्ड को एक्सेस करने के लिए कौन-कौन सा टाइम, जैसे डेज़िग्नेटेड टाइम है कि वो लेट्स से 8 टू 5 वर्कर है, तो उसको उसी शेड्यूल में यूज़ करना है और अगर इसके अलावा कोई लॉगिन अटेम्प्ट है या एक्सेस अटेम्प्ट है, तो वी कैन डिटेक्ट दैट देयर कुड बी सम सस्पिशियस एक्टिविटी गोइंग ऑन, ठीक है। नेक्स्ट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन। ये एक सर्विस होती है, इट्स लाइक क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन दैट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफाई एंड ऑप्शनली प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स एंड ईमेल बाय अप्लाइंग लेबल्स, एनालाइज डेटा फ्लोज एंड डिटेक्ट रिस्की बिहेवियर। तो ये एक एडवांस सिक्योरिटी टूल है जो आप इन माय नॉलेज वेरी रेयरली विल बी इन यूज। सो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, तो हाईली सिक्योर एनवायरनमेंट में इस टाइप का कोई सिक्योरिटी टूल इम्प्लीमेंटेशन का पॉसिबिलिटी हो सकता है। देन नेक्स्ट वन इज आल्सो वेरी रेयर, Azure Advanced Threat Protection, because these are basically expensive. That's why one of the reason no one go for that unless they do have really compliance related कुछ उनको काफी ज्यादा प्रेशर होता है, then only they go for this. So the second one is advanced threat protection. A cloud-based security solution identifies, detect, ठीक है, and helps you investigate advanced threats, ठीक है। तो ये इन्वेस्टिगेशन के लिए काम आता है और डिटेक्ट करने के लिए काम आता है बेसिकली। एडवांस लेवल ऑफ थ्रेट्स व्हिच कुड कॉम्प्रोमाइज योर आइडेंटिटीज। तो ये अगर किसी यूजर की आइडेंटिटी से रिलेटेड कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है, उसके लिए ये काम आता है, या कोई मेलिशियस इनसाइडर एक्शंस चल रहा है जिसमें कोई सस्पिशियस एक्टिविटी जो ये सस्पेक्ट करती है, तो वो आपको अलर्ट प्रोवाइड करती है और आप उसमें एक्शन ले सकते हैं कि यस दिस इज लाइक कंसिडर्ड समथिंग सस्पिशियस।
Azure ATP, Advanced Threat Protection, is capable of detecting non-malicious attacks and techniques, issues, security issues and risks against your network. तो वो नेटवर्क को ओवरऑल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, बिकॉज दे नो द कंटिन्यूअस और दे नो द यू नो पैटर्न्स विच आर अवेलेबल टू थ्रेट योर नेटवर्क. ठीक है. नेक्स्ट टूल इज एज्योर पॉलिसीज. ये जैसे कि हमारा रूल बुक होता है उस टाइप से होता है. तो एज्योर पॉलिसी सर्विस यू कैन यूज टू क्रिएट, असाइन एंड मैनेज पॉलिसीज. ठीक है. आपको पॉलिसीज बनाने के काम आएगा. जो कुछ बिल्ट इन पॉलिसीज होती हैं वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. माइक्रोसॉफ्ट की बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज बनी हुई है जो कि कंप्लायंस से रिलेटेड है, जैसे आईएसओ हो गया या एनआईएसटी हो गया. इस टाइप से जो कुछ पॉलिसीज हैं उनकी ग्रुप इनिशिएटिव जिसको हम बोलते हैं वो बने हुए हैं, वो उनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. दिस पॉलिसीज अप्लाई एंड एनफोर्स रूल्स दैट योर रिसोर्सेज नीड टू फॉलो. ठीक है. जो भी रूल इन पॉलिसीज में जो बंडल में बने हुए होंगे वो ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएंगे. अगर कोई भी वो रिसोर्स को या उस रिसोर्स को उसके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर करता है तो वो पॉलिसी ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगी. ठीक है. These policies can enforce these rules when resource are created. जब भी रिसोर्स बनेंगे तब ये रूल चेक होंगे कि वो उससे कंप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है. एंड कैन बी इवेल्युएटेड अगेंस्ट एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, जो पहले से बने हुए रिसोर्सेज हैं. जब आपने पॉलिसी इंप्लीमेंट की, हो सकता है उससे पहले से भी आपके रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हो, उनको भी वो चेक करता रहेगा. एंड टू गिव द विजिबिलिटी इनटू कंप्लायंस. तो ये कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अगर आप एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर का रोल टारगेट करते हैं तो उस केस में आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप कंप्लायंस को मेंटेन करें. ठीक है. So then it becomes really very important for you guys to implement some Azure policies which are needed for the organization. Second है initiative. Basically group of policies called initiative. So initiative works alongside policies. In Azure policy, an initiative definition is set or group of policy. इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है. बंडल बन जाएगा पॉलिसी का, उसको हम इनिशिएटिव बोलेंगे. Okay, that is also being used for compliance state and target goals. तो लार्जर गोल के लिए होता है कि उसमें कुछ बंडल बन जाता है पॉलिसीज का, मल्टीपल पॉलिसीज, उनको हम इनिशिएटिव बोलते हैं. All right. Next concept is like role based access control. RBAC ये होता है हमारा, एक तो होता है हमारा यूजर एंड ग्रुप. सो जो एंटर आईडी है वो यूजर से रिलेटेड है. ठीक है. और दूसरा है RBAC, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल. ये रिसोर्स से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना आप. ये रिसोर्स के लिए है, रिसोर्स की परमिशन डिफाइन करने के लिए. और ये है आपके यूजर की परमिशन को डिफाइन करने के लिए. ठीक है. तो इसके लिए हम एंटर आईडी यूज करते हैं. तो ये उनका आईडी कार्ड बना देता है. ठीक है. मतलब कि उसका ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन वो सब देखता है. और ये रिसोर्स को जो परमिशन देनी है और रिसोर्स के लिए जो परमिशन देनी है उससे रिलेटेड है. ठीक है. So RBAC provides fine-grained access management, ठीक है, for Azure resources. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि RBAC का जब भी नाम आता है वो that is for resource access management. ठीक है. Enabling you to grant users the specific rights they need to perform their job. ठीक है. तो definitely they are going to get the permission to the user, बट इट इज रिलेटेड टू रिसोर्स. ठीक है. वो अप्लाई जो होगे, एक्सेस कंट्रोल जो अप्लाई होगा वो रिसोर्स पे होगा. ठीक है. एंड देन RBAC is considered a core service that is included with all subscription. ठीक है. सब्सक्रिप्शन लेवल सभी जगह पे वो अप्लाई होगी एट नो कॉस्ट. एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है बेसिकली. ठीक है. तो ये हर रिसोर्स के साथ में एसोसिएट होगी जो उनको परमिशन देने के लिए काम आएगी. The next concept is resource lock. Resource locks are settings that can be applied to any resource. ये एक तरीके से लॉक होता है, जैसे अपना जो घरों में लॉक लगता है ना, उस टाइप से ये लॉक होता है. ठीक है. इस टाइप का लॉक बना होता है.
ठीक है? और ये लोग क्या है बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। एक तो रीड ओनली और दूसरा डिलीट ओनली। ओनली ऐसा कुछ। ठीक है? तो ये रीड करने के लिए होता है, ये ओनली रीड करने को देगा, इससे इसके अलावा कुछ नहीं करने को देगा। मॉडिफाई नहीं करने देगा, डिलीट नहीं करने देगा, कुछ भी नहीं कर सकते एक्सेप्ट रीडिंग इट। डिलीट ओनली वाला डिलीट नहीं करने का देगा। ठीक है? तो रिसोर्स लॉग सेटिंग ओके अप्लाइड ऑन रिसोर्स ब्लॉक मॉडिफिकेशन और डिलीशन। ठीक है? रिसोर्स लॉक्स कैन सेट ईदर डिलीट और रीड ओनली। ये 2 कैटेगरी मैंने आपको बताई, उस तरह से हो गया। हम इसको वैसे भी डिटेल में देखने वाले हैं, तो कोई इश्यू नहीं है। Delete will allow operation against the resource but block the ability to delete it. Delete वाला delete से prevent करेगा। अगर accidental delete हो जाए, आपका कोई virtual machine बना हुआ है जिसमें आपने बहुत सारा configuration कर रखा है और आपका live application चल रहा है और दूसरा कोई administrator आया, उसने delete मार दिया उसको गलती से, तो उससे prevent करने के लिए ये होता है। और ये कुछ भी रोल, कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटर हो, कुछ भी परमिशन हो, उसको वो लॉक लगा हुआ है तो वो उसको लॉक हटाना पड़ेगा, उसको डिलीट करने के लिए। दिस इज लाइक एडिशनल प्रोटेक्शन। ठीक है? रीड ओनली विल अलाउ रीड एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म अगेंस्ट इट, ब्लॉकिंग एनी मॉडिफिकेशन और डिलीशन। ठीक है? रीड ओनली वाला थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है कि वो जो भी यूजर उसको मॉडिफाई करना चाहता है या उसको डिलीट करना चाहता है, तो वो दोनों काम नहीं करने देगा उसको। ठीक है? इट कैन बी अप्लाई टू सब्सक्रिप्शन, हम पूरे सब्सक्रिप्शन पे अप्लाई कर सकते हैं, रिसोर्स ग्रुप पे अप्लाई कर सकते हैं, उसको इंडिविजुअल रिसोर्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? तो सब लेवल पे वो काम आता है। ठीक है, ओके एंड आर इनहेरिटेड, और इनहेरिटेंस होती है अप्लाइड ऑन हायर लेवल। अगर आपने सब्सक्रिप्शन पे कर दिया तो उसके अंदर जो भी रिसोर्स ग्रुप होंगे उन पे भी अप्लाई हो जाएगा। अगर आपने रिसोर्स ग्रुप पे कर दिया तो उसके अंदर जो भी रिसोर्स है, तो इनहेरिटेंस को वो लेवरेज करता है। ठीक है? Then we'll talk about Azure Monitor. Azure Monitor maximize the availability and performance of your applications by delivering a comprehensive solution for collecting. तो ये काम करता है। सबसे पहला काम करता है कलेक्ट करना, एनालाइज करना एंड एक्ट ऑन टेलीमेट्री। जो डेटा रिलीज होता है जैसे लॉग्स, इंफॉर्मेशन, वो सारा जो डेटा होता है उसको टेलीमेट्री बोलते हैं फ्रॉम द क्लाउड एंड ऑन प्रेमाइस एनवायरनमेंट। ठीक है? तो ये एक एज़्योर मॉनिटर सर्विस होती है जो हर रिसोर्स के साथ एसोसिएट होती है और उसका काम करना है उस रिसोर्स के जो डेटा है उसको मॉनिटर करते रहना। ठीक है? उसको लॉग को कलेक्ट करते रहना, उसको मॉनिटर करते रहना, उसको एनालाइज़ करते रहना। ठीक है? तो वो ये एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में समझाया है बट इट एप्लाइज़ ऑन ऑल द रिसोर्सेज़। ठीक है? इट प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाइज़ द इश्यू अफेक्टिंग देम एंड रिसोर्सेज दे डिपेंड ऑन दिस। ठीक है? नेक्स्ट सर्विस जो होती है मॉनिटरिंग रिलेटेड ही है ये अभी, एज्योर हेल्थ सर्विस और सर्विस हेल्थ बेसिकली। So Azure Service Health is a suite of experiences that provide personalized guidance and support when issues with the Azure service affect you। ठीक है? तो ये एक सर्विस होती है जो कि गाइडेंस एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती है बट रेयरली इज बीइंग यूज्ड। मॉनिटर से ही आपका काम ज़्यादातर हो जाता है। ठीक है? It can notify you when you understand the impact of issues and keep you updated। तो इट्स लाइक नोटिफिकेशन सर्विस भी इसमें इंक्लूड है जो आपको नोटिफाई करेगी अगर रिसोर्स की हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यू आता है तो। ठीक है? नाउ कुछ कंप्लायंस से रिलेटेड इन्होंने इन्फॉर्मेशन बताई है हमें, वो हम देख लेते हैं क्विकली। जैसे कि जीडीपीआर जो है ये एक यूरोपियन प्राइवेसी लॉ है। ठीक है? ये इससे कुछ कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन लेट्स से आपका, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं अगर वो कंपनी का क्लाइंट यूरोपियन क्लाइंट है, उस केस में अ, उस केस के अंदर आपको ये कंप्लायंस को देखना होता है। बट दीज़ आर लाइक ऑटोमेटेड सो यू डोंट हैव टू वरी बिकॉज़ इन एज़्योर पॉलिसी ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ प्रीफिक्स्ड, सो कोई इश्यू वाली बात नहीं है इसमें। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि ये एक कंप्लायंस एक्जिस्ट करता है दैट बिलॉन्ग्स टू यूरोपियन यूनियन। आईएसओ आप जानते ही हैं आईएसओ के बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं। तो उसमें से एक ये कंप्लायंस है 27018 व्हिच इज़ लाइक माइक्रोसॉफ्ट इज़ फर्स्ट क्लाउड प्रोवाइडर टू हैव एडॉप्टेड दिस वन code of practice covering the processing and personal information by cloud service providers। तो ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से रिलेटेड कुछ कंप्लायंस है जो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट इंश्योर करता है कि देयर क्लाउड सिस्टम इज कंप्लायंट विद दैट। तीसरा वाला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी एनआईएसटी साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क सीएसएफ।
तो ये एक वॉलंटरी फ्रेमवर्क है जो कंसिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स, गाइडेंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस टू मैनेज साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड रिस्क. Microsoft Cloud Service have undergone independent third-party federal risk and authorization management program, moderate and high baseline audits, and तो basically वो इससे compliant है. This is what we just have to understand the compliance. That's it. Nothing related to us. देन माइक्रोसॉफ्ट प्राइवेसी स्टेटमेंट है एंड ट्रस्ट सेंटर है इनका जो वेबसाइट रिसोर्स कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन डिटेल्स अबाउट हाउ माइक्रोसॉफ्ट इम्प्लीमेंट सपोर्ट सिक्योरिटी. ये आपका रीडिंग मटेरियल है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है. आपका कोई भी इंटरव्यू में नहीं पूछने वाला है इसको. चाहे आपको इसके बारे में पता हो या नहीं पता हो चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं. दिस इज जस्ट इंफॉर्मेटिव कंटेंट. ओके, एंड देन यू हैव कंप्लायंस मैनेजर. रेयरली यू विल बी यूजिंग दिस. अगर आपको कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा कुछ मिल गया तो उस केस में आपको कंप्लायंस मैनेजर जैसा कोई सर्विस या कोई रिसोर्स आपको देखना होगा. ठीक है, बाकी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती. एज़्योर गवर्नमेंट सर्विसेज में भी यही होता है. तो ये बेसिकली यूएस गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा यूज़ होता है. एंड यू नो दैट प्राइवेट कंपनीज विच आर हायरिंग फ्रॉम अब्रॉड, they never give us the access to any government resources, so you don't have to worry about this. Okay, next core thing is pricing model of the Microsoft Azure. इसके बारे में हम देख लेते हैं कैसे उनकी प्राइसिंग होती है, वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं. सो अंडर प्राइसिंग एंड सपोर्ट हम देखते हैं कि सब्सक्रिप्शन वाला मॉडल कैसे होता है, कैसे उनका सब्सक्रिप्शन होता है. And then we'll talk about options purchasing Azure and options around the Azure free account, factors affecting the cost, pricing calculator के बारे में जानेंगे. फिर हम देखेंगे कि total cost of ownership के बारे में calculator के perspective में हम कैसे calculate करते हैं. Then the best practices of minimizing the Azure cost, Azure cost management के बारे में थोड़ा डिटेल से देखेंगे. सपोर्ट प्लान्स एंड हाउ टू ओपन अ टिकट. और ये कुछ नॉलेज जैसा है जो ज़्यादातर आपको कभी सपोर्ट टिकट ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मोस्टली यू कैन गेट इट बाय रिसोर्सेज विच आर फ्रीली अवेलेबल. तो रेयरली यू विल हैव टू क्रिएट अ सपोर्ट टिकट. ठीक है, नॉलेज सेंटर भी है इनका और वो सब देख सकते हैं. SLA क्या होता है वो तो चलो हम क्विकली देख लेते हैं. तो एज्योर अकाउंट क्या होता है वो देख लेते हैं सबसे पहले. An Azure account is tied to specific identity and holds information like name, email. तो बेसिकली जब हम Azure अकाउंट जो हम आज क्रिएट करने वाले हैं, जब हम Azure अकाउंट को क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हमें कोई हमारा जीमेल अकाउंट या कोई हमारा नॉर्मल प्राइवेट अकाउंट, पर्सनल अकाउंट बेसिकली देना होता है. चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी हो, उनको अपना अकाउंट देना होता है. और वो अकाउंट में उनका नेम, इन्फॉर्मेशन, ईमेल वगैरह देना होता है. सो लाइक प्रेफरेंस, बिलिंग इन्फॉर्मेशन सच एज क्रेडिट कार्ड, ये सब हमें प्रोवाइड करना होता है. An Azure account is what you use to sign in into Azure website and administer or deploy the services. Every Azure account is associated with one or more subscriptions. So उसमें आप एक सब्सक्रिप्शन हो सकता है, एक से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन भी आप उसमें बना सकते हैं. ठीक है, तो ये टॉप मोस्ट आपका हायरार्की हो गया एज्योर अकाउंट. ठीक है, नेक्स्ट इज एज्योर फ्री अकाउंट. तो फ्री अकाउंट में क्या होता है, वो जो हम क्रिएट करेंगे वो हमारा फ्री अकाउंट ही होगा. सबसेट ऑफ एज्योर सर्विसेज फ्री फॉर 12 मंथ्स. तो ये वाला आपके 12 मंथ आपको फ्री मिलेगा, जिसमें 750 वर्चुअल मशीन आवर्स मिलेंगे, 5 GB स्टोरेज मिलेगा, 250 GB SQL DB. तो ये चेंज होता रहता है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट सेम ही हो, कुछ चेंज भी हो सकता है. और इसमें की थिंग ये है कि $200 आपको फर्स्ट मंथ 30 डेज के लिए मिलता है. और 25 प्लस ऐसी सर्विसेज होती है जो ऑलवेज फ्री होती है. ठीक है, जैसे RBAC हो गया अपना, है ना, एंट्रा ID हो गया, ये कुछ फ्री सर्विस है, वो आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, देन एज्योर सब्सक्रिप्शन के बारे में देख लेते हैं. एज्योर सब्सक्रिप्शन इज अ लॉजिकल कंटेनर. इट्स लाइक यू कैन हैव वन और मोर सब्सक्रिप्शन इन योर अकाउंट. तो एज्योर सब्सक्रिप्शन को आप एक लॉजिकल कंटेनर की तरह मान सकते हैं. Okay, so this is like logical container used to provision resources in Microsoft Azure. It holds the detail of your resources like virtual machine और ये सारा उसमें आप बना सकते हैं. ठीक है, Azure subscription use and option क्या है? Azure offers free and paid subscription. तो हम साइन अप करेंगे वो फ्री होगा सबसे पहले वाला. ठीक है,
और सबसे पहले हम फ्री अकाउंट बनाएँगे, फ्री सब्सक्रिप्शन को साइन अप करेंगे, फ्री सब्सक्रिप्शन जहाँ पे हमें $200 मिल जाएँगे और वो 30 डेज़ में हमें यूज़ करने हैं। उसके बाद में वो चेंज हो जाएगा आफ्टर 30 डेज़ पे एज़ यू गो, ठीक है? ये अपग्रेड हो जाएगा इसमें। 30 डेज़ में हमें $200 नहीं भी खत्म होंगे, तो भी वो इसमें ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? एंड उसमें हमें 12 मंथ मिलेगा जो कि आई थिंक या 12 मंथ इसमें मिलेगा, जो 25 प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बट आफ्टर 30 डेज़ आई थिंक इट विल स्टार्ट आस्किंग यू पे एज़ यू गो। तो हो सकता है ये हो, अगर आप रिसोर्सेज़ बनाएँगे तो ये स्विच करने के लिए बोलेगा। बट देयर इज़ नो हार्म इवन चेंजिंग इट इफ यू आर नॉट स्पेंडिंग ऑन दिस, सो यू कैन कीप इट। ठीक है, बाकी आपके एंटरप्राइज़ एग्रीमेंट से रिलेटेड आपके इसमें बन सकते हैं, ठीक है? ईए जो बनता है वो आपका अ, एग्रीमेंट साइन होगा, ठीक है? एंड देन अगर आपका यूनिवर्सिटी अकाउंट है आई थिंक देन you will get $100 credit within 12 month you can use that, ठीक है? And plus you will select some free services which you will get विदाउट रिक्वायरिंग अ क्रेडिट कार्ड। इस केस में आपको क्रेडिट कार्ड नहीं पूछेगा, लेकिन आपका स्टूडेंट अकाउंट एक्टिव होना चाहिए प्रूव करने के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है? ये एक स्टूडेंट का पहले बैच में किसी ने ट्राई भी किया बट इट डिडंट वर्क फॉर सम रीज़न। तो ये आपको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा आपका अगर यूनिवर्सिटी का अकाउंट वर्क करता है, ठीक है? इसमें आपको क्या-क्या फ्री मिल रहा है? फ्री एक्सेस टू बिलिंग एंड सब्सक्रिप्शन सपोर्ट, ठीक है? एंड एवरी प्रोडक्ट एंड सर्विस डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल ही रहा है, ऑनलाइन सेल्फ हेल्प डॉक्यूमेंटेशन मिल रहा है, कम्युनिटी सपोर्ट मिल रहा है, ये सारा कुछ इसमें फ्री ऑफर आ रहा है। ऑलराइट, तो थोड़ा प्राइसिंग मॉडल के बाद में देख लेते हैं इसमें। उम, BYOL मॉडल, इट ब्रिंग्स योर लाइसेंस मॉडल, तो ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है, ठीक है? यू कैन ब्रिंग इन योर ओन लाइसेंस इफ यू हैव। फ्री सॉफ्टवेयर ट्रायल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यूज़ कर सकते हैं, फिर यूज़ बेस्ड मॉडल होता है, ठीक है? और मंथली फ़ी मॉडल भी होता है। तो ये कुछ प्राइसिंग मॉडल हैं माइक्रोसॉफ्ट के। डिपेंडिंग ऑन द रिसोर्स अलग-अलग जगह अलग-अलग मॉडल अप्लाई होता है, ठीक है? Microsoft offer multiple ways by which one can buy Azure subscription. On high level, there are three categories. तो enterprise agreement के थ्रू आप बाय कर सकते हैं, ओपन लाइसेंस प्रोग्राम के थ्रू आप बाय कर सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर की तरह आप बाय कर सकते हैं। So there are some methods you can go with. तो I think we will be going with this open license one, pay as you go, ठीक है? एंड या माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर से भी अगर आप अगर एज अ ऑर्गेनाइजेशन यू कैन ट्राई टू गेट सम बेनिफिट फ्रॉम देयर, तो उसमें भी होता है, ठीक है? व्हाट इज द एज्योर सब्सक्रिप्शन? तो इसमें हम देख लेते हैं कि इज नेम सजेस्ट सब्सक्रिप्शन रेफर्स लॉजिकल एंटिटी दैट प्रोवाइड एंटाइटलमेंट टू डिप्लॉय एंड कंज्यूम एज्योर रिसोर्सेज, ठीक है? इमेजिन एज़्योर सब्सक्रिप्शन टू बी लाइक अ प्रीपेड सिम एक्टिवेशन। तो ये सिम सर्विस की तरह ही है। एक सब्सक्राइब कर लो आप और उसमें मंथली जैसे अपना हम पेमेंट करते रहते हैं, वैसा होता रहेगा आपका। एंड इट डिपेंड ऑन टाइप एंड कैन बी इट्स लाइक पोस्टपेड सर्विस की तरह आपका पे एज़ यू गो में चलता रहेगा। जैसे आप स्पेंड करेंगे वैसा हो जाएगा, ठीक है? एंड सब्सक्रिप्शन फ्यूज़ द एज़्योर रिसोर्सेज़ कस्टमर टेनेंट, ओके। ठीक है। सो इट्स लाइक पोस्टपेड सर्विस की तरह चलता रहता है सब्सक्रिप्शन एंड यू कैन हैव मल्टीपल सब्सक्रिप्शन एंड बाय हैविंग मल्टीपल सब्सक्रिप्शन यू कैन हैव मल्टीपल बिलिंग एज़ वेल, ठीक है। मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस कैन एक्जिस्ट विद इन द सेम कस्टमर टेनेंट। जब आप अकाउंट बनाएँगे एक अकाउंट के अंदर मल्टीपल सब्सक्रिप्शन हो सकते हैं। हर सब्सक्रिप्शन कैन इंडिपेंडेंटली फ्यूल डिफरेंट सेट ऑफ रिसोर्सेज। हर एक सब्सक्रिप्शन में कोई भी रिसोर्स हम जैसा मन चाहे वैसा बना सकते हैं और सब्सक्रिप्शन कैन कम फ्रॉम डिफरेंट परचेज चैनल्स एंड को एग्जिस्ट भी वो कर सकते हैं, ठीक है? इंडिपेंडेंटली हम चाहें तो उसको वेंडर के थ्रू एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, दूसरा हम इंडिविजुअली हम ओपन प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। इस तरीके से मिक्स्ड वे में हम कर सकते हैं, ठीक है? देन ये कुछ सर्विस है, उनका कुछ मैट्रिसेस हैं, तो दिस इज़ लाइक जस्ट इन्फॉर्मेटिव। इन फ्यूचर मेबी we'll as we go with these services, we will talk about this more, but this is just a screenshot। कुछ उनके
मेट्रिक है, ठीक है? एंड ये सर्विस किससे रिलेटेड है उसके बारे में बताया है, तो ये थ्रेशोल्ड मान लीजिए आप, ठीक है? एंड ये कुछ सर्विसेज़ हैं जिनके मेट्रिक हैं, जो कि नेटवर्क से रिलेटेड हैं, उनसे रिलेटेड ये बताया है, ठीक है? एंड देन परचेज़िंग ऑप्शन जो हमने देखा था वेब डायरेक्ट हम क्लाउड सॉल्यूशन प्रोवाइड से ले सकते हैं, ठीक है? वेब डायरेक्टली हम इससे ले सकते हैं, ठीक है? फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉस्ट रिसोर्स टाइप, ठीक है? क्या फैक्टर हैं जो आपको अफेक्ट करेंगे? तो पहला हो गया आपका सर्विस, जो सर्विस हम लेने वाले हैं, वो एक फैक्टर है, ठीक है? दूसरा हो जाएगा आपका लोकेशन, आप कौन-सी लोकेशन के लिए, कौन से डेटा सेंटर के लिए उस सर्विस को टारगेट कर रहे हैं, तो वो प्राइसिंग को इम्पैक्ट करेगा। जैसे कि अगर आप एक इंडिया में रिसोर्स बना रहे हैं, वर्चुअल मशीन इंडिया में बना रहे हैं, उसकी प्राइसिंग थोड़ी-सी डिफरेंट होगी कंपेयर टू द वर्चुअल मशीन यू आर क्रिएटिंग मे बी इन यूएसए और यूके और ऑस्ट्रेलिया। तो लोकेशन क्योंकि उनका लोकल टैक्सेशन होता है उसके ऊपर, उनकी डेटा सेंटर मेंटेन करने का कॉस्टिंग अलग होता है, तो उनका हर एक लोकेशन का एक-एक प्राइसिंग उन्होंने डिफरेंट कर रखा है। और दूसरा कॉस्टिंग फैक्टर होगा, वो होगा आपकी सर्विस, वर्चुअल मशीन की साइज़, कितना मेमोरी उसमें यूज़ करने वाले हैं, कौन से सोर्स से आप ले रहे हैं, वो सारा कुछ आपको इम्पैक्ट करेगा, ठीक है? और नेक्स्ट फैक्टर इज़ ज़ोन। तो ज़ोन इज़ लाइक इन रीजन वी हैव ज़ोन एज़ वी स्टडीड अबाउट दिस, तो वो भी एक फैक्टर है। तो कौन से ज़ोन में आप बनाने वाले हैं, क्योंकि कुछ ज़ोन जो होते हैं उनके मोस्ट डिमांडिंग होते हैं और कुछ ज़ोन खाली पड़े होते हैं, तो वो ज़ोन पे भी आपकी प्राइसिंग का इम्पैक्ट होगा, ठीक है? देन विल टॉक अबाउट द प्राइसिंग कैलकुलेटर। हमारे पास में एक फ्री टूल है जो कहलाता है प्राइसिंग कैलकुलेटर। उस पे हम प्राइसिंग देख सकते हैं। तो मैं आपको क्विकली दिखा लेता हूँ। लेट मी जस्ट ओपन द एज। एज़्योर कॉस्ट कैलकुलेटर, आई थिंक एज़्योर कॉस्ट कैलकुलेटर या प्राइस कैलकुलेटर बोल रहा हूँ। ठीक है, इसको हम क्विकली ओपन करते हैं। बट एनकाउंटर एरर, ठीक है। ओके, तो इसमें जो भी रिसोर्सेज़, ये सारे रिसोर्स की कैटेगरी दी हुई हैं और आपको जो भी रिसोर्स बनाना है, जैसे मुझे एक वर्चुअल मशीन चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल, चलो इस वर्चुअल मशीन पिक कर लेते हैं। तो ये कैलकुलेट करके बताएगा और आपको कुछ जानकारी देगा, तो नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो हमारा एस्टिमेट यहाँ बताएगा ये। इसमें हमें बेसिकली ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो देख लेते हैं। इसको मिनिमाइज़ करते हैं और कुछ ऐड तो नहीं हो गया, तो ये ठीक है, सपोर्ट और ये सब आ रहा है, ठीक है? सपोर्ट ये प्रोग्राम ऑफर, इसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट इसलिए मंथली $137 दिया है, ठीक है? अब देखते हैं कि उसने वर्चुअल मशीन में क्या अज़्यूम करके दिया है। तो वर्चुअल मशीन की साइज़, रीजन इसने सेलेक्ट किया है ईस्ट यूएस, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़, टाइप ओएस ओनली एंड टियर इज़ गोइंग टू बी बेसिक एंड स्टैंडर्ड, द स्टैंडर्ड लिया है। कैटेगरी में कुछ भी नहीं लिया है इसने, ठीक है? और इंस्टेंस ऑल लिया है और इसमें इंस्टेंस इसने ये वाली पिक की है, ठीक है? अलग-अलग इंस्टेंस है, तो इंस्टेंस हम जैसी चाहिए वैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके हिसाब से अपनी प्राइसिंग एडजस्ट होगी। अभी देखो 137 दिखा रहा था, हमने इंस्टेंस वो ली तो $14 पे आ गया। ये वाली हमने 1 कोर वाली ली। हो सकता है उस टाइम कौन-सी थी, आई एम नॉट श्योर, बट या एज़ वी आर इंक्रीजिंग दिस, सी इट्स इंक्रीजिंग $500 फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो जितना आप फ्यूल अप करेंगे इसको, उस हिसाब से वो प्राइसिंग चेंज करेगा। नेक्स्ट फैक्टर इज़ कि कौन-सा टियर आप ले रहे हैं, लेट्स से अगर बेसिक टियर ले रहे हैं, स्टैंडर्ड टियर ले रहे हैं, तो थोड़ा प्राइसिंग में डिफरेंस होगा। इंस्टेंस सीरीज़ it's like different series are there. So let's say if I select A series for example and B, yeah, so ये सीरीज़ से भी आपका इम्पैक्ट होगा। यहाँ देखो आप, जो सीरीज़ आप लेते हैं उसके अकॉर्डिंगली ये प्राइसिंग चेंज होगी। बेसिक दीज़ आर रिलेटेड टू इंस्टेंस इटसेल्फ, ठीक है? ठीक है, इस तरीके से आएगी। फिर आपका कैटेगरी, अगर आपको आपका वर्चुअल मशीन बनाना है जो कि कंप्यूट ऑप्टिमाइज़ हो, जिसमें प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा रहे, ठीक है? तो ये देखो ऑटोमैटिकली यहाँ पे इंस्टेंस टाइप F1 चेंज हो गया है, ठीक है? तो कंप्यूट ऑप्टिमाइज़ आपको मशीन चाहिए जिसमें कंप्यूटिंग पावर ज़्यादा हो।
तो वो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। दूसरा जनरल पर्पस, कॉमनली जो हम बनाते हैं जनरल पर्पस होता है, जो कि नॉर्मली यूज होता है, जिसमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा मिल जाता है। जीपीयू से रिलेटेड आपको चाहिए तो उसकी प्राइसिंग देखिए आप कितनी ज्यादा है, 3487। तो कीप इन माइंड, आप ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट मत करना जिसमें आप ऐसा रिसोर्स बना दे जिसमें दो $200 आपके एक ही दिन में साफ हो जाए। जैसे ऐसा कुछ रिसोर्स बना लिया तो एक ही दिन में आपका पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा, ठीक है। सो बी केयरफुल, आप जो नॉर्मल जनरल पर्पस सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा ही रिसोर्स बनाना टेस्टिंग के लिए, जो कि कम एक्सपेंसिव है। तो कॉस्ट कैलकुलेटर आपका बहुत बढ़िया फ्रेंड है, जिसको जिसको यूज करके आप इजीली yeah, Aniket, you are raising your hand. I don't know when you raise your hand. यस सर, आई हैव अ क्वेश्चन सर दैट वो टीयर मीन्स कौन सा होता है सर? स्टैंडर्ड और बेसिक मतलब कैसा होता है टीयर मीन्स? वो ये समझ नहीं टीयर आया। मतलब बेसिक और स्टैंडर्ड, ये में थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने अलग अलग टीयरिंग कर रखी है, और कुछ नहीं, ओके। ठीक है। तो ओके। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम आगे और देखेंगे जब हम बनाएंगे, तो थोड़ा ओके। सा इसमें सिक्योरिटी का डिफरेंस आएगा, थोड़ा सा इसमें परफॉर्मेंस का डिफरेंस आएगा, वो इसमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये ओके। टीयर बने हुए हैं, तो ये जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो प्लेज अ रोल। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम आप उबुंटू लेते हैं तो थोड़ा कॉस्टिंग डिफरेंट आएगा, और ये आपका विंडोज का लेंगे तो थोड़ा कॉस्टिंग का डिफरेंस जरूर आएगा, ठीक है। तो इसका लाइसेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, अगर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम आप चूज कर सकते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द रूल्स और सेट ऑफ हेलो इंफॉर्मेशन। सर। हाँ जी। हेलो सर। सर यस ये प्रणव। रीजन इंडिया का आ सकता है क्या सर? ईस्ट ओ, यूएस बहुत सारे रीजन। रीजन है इसमें, पूरी दुनिया पड़ी हुई है, देखो ये सब है इसमें। जो हमने उसमें ग्लोब हाँ में देखे थे ना, वो सारे कुछ है इसमें। जैसे कि हाँ। इंडिया का ओके। देखना है तो आई थिंक किधर गया अपना इंडिया, जापान, इंडिया, इसराइल, ये रहा। तो इंडिया में 3 रीजन है हमारे पास में, सेंट्रल इंडिया में बना सकते हैं, साउथ इंडिया में बना, फॉर सम रीजन आई एम गेटिंग म्यूटेड, आई एम नो, एनीवेज। ओके। ऑल राइट, तो हमारा इंडिया में रीजन, हमारा 3 रीजन हमें है, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया एंड वेस्ट इंडिया, ठीक है। तो किसी में भी हम बना सकते हैं, ओके। okay. So these all region which we have seen earlier on the globe are available, ठीक है। आप कहीं पे भी जैसा आपको रिक्वायरमेंट है, और रीजनल इम्पैक्ट होगा आपका, जैसे कि सेंट्रल इंडिया में बनाते हैं अगर लेट्स से, तो प्राइसिंग 1460 आ रहा है, लेट्स गो, ठीक है। अगर हम कोई बड़ा बनाएंगे तो थोड़ा हो सकता है डिफरेंस आए, जैसे इसमें 382 है सेंट्रल इंडिया, और मैं अगर चलो मैक्सिको में बना के देखता हूँ कितना आता है, तो इसमें ये कुछ चेंज हुआ। लेकिन ये एक प्रॉब्लम है कि जब आप बनाएंगे तो आपको ये दोनों के साथ में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि इधर क्या लिखा हुआ था और इधर क्या लिखा हुआ था, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली चेंज करता रहता है, ये एक प्रॉब्लम है थोड़ा इसमें, ठीक है। तो वो प्राइसिंग को कंपेयर करने के लिए आपको नोट डाउन करना होगा कि एक एरिया सेलेक्ट करो, जैसे कतर लिया, और आपने E8 वाला ये कौन सा लिया है उसको कंपेयर करना है, तो इस पे ध्यान रखना है कि ये क्या था, और फिर उसके बाद में आपको ये, और इसके अलावा यहाँ पे भी दिया हुआ है कि जैसे कि पर आवर के बेसिस पे कितना लगना है आपको, तो ये करके भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ये इंस्टेंस अगर बनाते हैं तो आपको पर आवर $400 लग रहा है, सो लाइक आवरली भी लिखा, नो थैंक्स कर लेता हूँ यहाँ पे। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं पर आवर के बेसिस पे कितनी कॉस्टिंग आ रही, सर, ठीक है। हम्म सर ये जो हमारा रिक्वायरमेंट आता है, अगर हम हम्म। समझो हमारा रिक्वायरमेंट है वर्चुअल मशीन हमें क्रिएट करना है, तो राइट। उसमें रिक्वायरमेंट में सभी मतलब मेंशन किया होता है कि कौन से रीजन में बनाना है, किस कैटेगरी में बनाना है, या कौन से टेयर में बनाना है, सब मेंशन किया होता है ये, या हमें एज अ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हमें वो करके देना पड़ता है? नहीं, देखो देर आर टू पॉसिबिलिटीज। एक तो आपका मैनेजमेंट अगर शार्प हुआ, या आपका सीनियर अथॉरिटी जहां आप ज्वाइन करते हैं, अगर आपसे कोई ऊपर सीनियर है, तो वो सब आपको बना के देगा कि भाई ये ओके। चीज बनाओ, मेरे पास मैंने ऊपर से अप्रूवल लाया हूँ, ऐसा करके वो सब कुछ करके आपको देगा, अगर आप किसी के नीचे एसोसिएट की तरह काम करेंगे। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आपकी कंपनी में ऐसे कि वो आपको आके पूछें कि मुझे ये चीज बनानी है,
फिर आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली इस कैलकुलेटर पे आना है, ठीक है? आपको यहीं से क्वेश्चन बना देने हैं। उनको पूछना है कि सर आप कौन से रीजन में चाहते हैं, ठीक है? और ओके आप कौन-सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चाहिए? तो आपके जो क्वेश्चन अगर आपको बनाना है तो ये बहुत बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म है। फिर आप पूछ सकते हैं कि सर कौन-सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए लिनक्स के अंदर? फिर तो आप ईमेल में जैसे ड्राफ्ट करने वाला है तो यहाँ पे आके ये क्वेश्चंस फ्रेम कीजिए। प्लीज़ लेट मी नो व्हिच रीजन यू आर लुकिंग फॉर एंड व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम यू आर लुकिंग फॉर एंड व्हिच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यू आर लुकिंग फॉर। ठीक है? एंड देन यू विल फ्रेम द क्वेश्चन, are you going to be using it for general purpose or would you like to have it is, compute optimized or any high performance stuff or memory optimized, storage optimized। तो किस तरीके का वर्चुअल मशीन आपको चाहिए? फिर आप इसमें से कुछ चॉइस है, ये आप दे सकते हैं, ठीक है? फिर वो आपको बताएँगे कि हमारा जो एप्लीकेशन है उसको जैसे कि हमें लगभग 7 जीबी के आसपास रैम चाहिए या 5 जीबी चाहिए, जो भी वो बोलेंगे, ठीक है? ओके उस हिसाब से आप उसको सॉल्यूशन देंगे कि हमारे पास ये ऑप्शन मिल रहे हैं जिसमें 0.400 पर आवर के हिसाब से है ना? तो यहाँ से जो रेट निकलेगी, वो आप उनको बोलेंगे, वो अप्रूवल लेके आएँगे और फिर आप उनके लिए वो रिसोर्स बना देंगे, ठीक ओके है? ओके सर So ओके this is थैंक यू how, yeah. So this is how basically, and sometime if you want to save the money, let's say अगर आपका मैनेजमेंट बोलता है कि नहीं हमें तो 1 साल के लिए ये चाहिए फिक्स, हमारा कस्टमर पे कर रहा है आगे से, तो रिजर्व इंस्टेंस भी बना सकते हैं इसमें। सेविंग प्लान होते हैं इनके, जैसे कि यहाँ पे अगर हम जाते हैं, तो हमें यहाँ पे 24%, 24% का डिस्काउंट मिल रहा है। जो भी प्राइस हमें यहाँ आ रही है ऊपर, उसमें से हमें 24% डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है? पेमेंट ऑप्शन भी हमें मिल रहा है, अपफ्रंट दे रहे हैं साल भर का या मंथली दे रहे हैं, तो उस हिसाब से। अगर हमारा 3 ईयर का कमिटमेंट है, तो 45% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है? तो ये हमें कुछ ऑप्शंस हैं। तो उसके बाद में हम अगर ऐसा ईयरली कमिटमेंट या ऐसा कुछ मैनेजमेंट पूछता है, तो इट्स लाइक एक्टिव कम्युनिकेशन, वन टू वन कम्युनिकेशन और सम टाइम यू कैन हैव मल्टीपल कॉरेस्पॉन्डेंस, ईमेल वाला कॉरेस्पॉन्डेंस हो सकता है। तो उसमें एक बार उन्होंने बोला कि हमारा ये आपको आंसर कर दिया, फिर आप हो सकता है फॉलो अप ईमेल करें, उनको पूछ लें कि आर यू लुकिंग फॉर अ 1 ईयर कमिटमेंट और समथिंग, वुड यू लाइक टू पे अपफ्रंट, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन आ जाएगी। जैसे अगर हम जाते हैं अपफ्रंट में, तो प्राइसिंग देखो आपकी क्या हो गया, 0 हो गया है तो। नहीं, अपफ्रंट वाले में 2600 समथिंग आ रहा है 3 ईयर का आई थिंक, इसके लिए 8 कोर, ठीक है? तो यहाँ पे देखो 1 ईयर का इस तरीके से आपको कैलकुलेट करके बताएगा, ठीक है? अगर मैं चेंज करता हूँ, लेट्स सी कितना आ रहा है, 287 पर ईयर अपफ्रंट। मतलब इनिशियली मैं दे दूँगा इसका 1 साल का मेरा कमिटमेंट हो गया। अगर इसी को मैं करता हूँ 3 साल के लिए 3 ईयर, तो देखो 624 के आसपास कुछ आ रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से हमें कुछ बेनिफिट्स इसमें उठा सकते हैं। बट ये दिस इज़ ऑल अबाउट द मैनेजमेंट डिसीजन। दे विल डिसाइड एंड अप्रूव इट फॉर यू एंड अकॉर्डिंगली यू विल डू दिस। ओके, सो ये जो हमारा इसमें 200 क्रेडिट प्लस वाले फ्री में ये सब मिल जाएगा हमें। अ, ये सारा इसमें बेनिफिट मिलेगा। तो जैसे ये मैं डिलीट करता हूँ, इससे डिलीट दिस एस्टीमेट। इसी तरीके से आप कोई सी भी सर्विस ले लो, कंप्यूट वाला हो गया, हमारा नेटवर्किंग, स्टोरेज में ले लो, चलो स्टोरेज अकाउंट बना रहे हैं, तो उसमें भी हमें इसी तरीके से एस्टीमेट मिल जाएगा। तो सारा कुछ हमें यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो मिल जाएँगे उससे रिलेटेड, और हम उसके अकॉर्डिंग हम इस कैलकुलेटर से प्राइसिंग दे सकते हैं। सो दिस इज़ द प्राइसिंग कैलकुलेटर। डेफिनिटली टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, जो हम अगर किसी प्रोडक्ट को लेते हैं तो साल भर में कितना स्पेंड करेंगे, वो सब टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप हम देख सकते हैं, ठीक है? तो ये जस्ट फॉर नॉलेज, इट्स लाइक हाउ यू कैन मिनिमाइज़ योर कॉस्ट, ठीक है? तो पे एज़ यू गो में जा सकते हैं, अपफ्रंट वाले में जा सकते हैं आप, है ना? 3 रिज़र्व इंस्टेंस में जा सकते हैं उस तरीके से। तो ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। रिज़र्व इंस्टेंसेस ये मेंशन किया हुआ है जो हमने वहाँ देखी थी, ठीक है? तो ये मोस्ट ऑफ दीज़ थिंग्स आर इन्फॉर्मेटिव, ठीक है? लेट्स गो एज़्योर कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट में हम इसका ये कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये देख सकते हैं, ठीक है? कॉस्ट मैनेजमेंट इज़ अ टूल बेसिकली। हम इसके बारे में आगे देखने वाले हैं वैसे भी, जब हम एक्टिव लैब में जाएँगे। ठीक है, ये कुछ अवेलेबल रिसोर्सेज़ हैं जैसे कि नॉलेज सेंटर है, डेवलपर नेट एमएसडीएन है,
ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो है, ये कुछ फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिस पे आप देख सकते हैं। और इसमें आप सपोर्ट का भी ऑप्शन हमें मिल जाता है। नॉलेज सेंटर में हमारा काफ़ी कुछ हमें सीखने को नॉलेज सेंटर से मिल सकता है। एसएलए के बारे में हम सर्विस लेवल एग्रीमेंट भी देख सकते हैं। ये गूगल करेंगे तो भी मिल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज लाइक प्राइवेट प्रीव्यू। कुछ प्रोडक्ट्स हमारे प्राइवेट प्रीव्यू और पब्लिक प्रीव्यू में होते हैं, जिसमें कि अगर एज़्योर फीचर अवेलेबल फॉर स्पेसिफिक कस्टमर्स, तो कई बार कोई नया प्रोडक्ट अगर माइक्रोसॉफ्ट रिलीज करने वाला है, तो वो प्राइवेट प्रीव्यू के लिए निकालते हैं, जिसमें उनके सेलेक्टेड कस्टमर उनको उस प्रोडक्ट को यूज करके देखते हैं, उसका फीडबैक देते हैं, है ना? तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको प्राइवेट प्रीव्यू बोलते हैं। और पब्लिक प्रीव्यू में हमें कई बार ऐसे नई फीचर प्रीव्यू आगे लिखा हुआ आता है, सो दैट फीचर इज बेसिकली अंडर टेस्टिंग विद द पब्लिक। तो इस तरीके से वो होता है न्यू रिलीज। ठीक है, इस तरीके के फीचर को आप एक्सेस भी कर सकते हैं इंटेंशनली। अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं कौन सा प्रीव्यू में चल रहा है। नए फीचर जो भी आते हैं ऑटोमेटिकली एनीवेज इट शोज, तो आपको स्पेशली एफर्ट्स नहीं डालने होते हैं, बट यू कैन सी फ्रॉम preview.portal.azure.com आल्सो। ठीक है, जनरल अवेलेबिलिटी, वंस अ फीचर हैज बीन इवेल्युएटेड टेस्टेड सक्सेसफुली, it might be released to customers as part of Azure default product set. This release is preferred as general availability. एक बार ये प्रीव्यू से बाहर निकल गया, उसके बाद में वो जनरली अवेलेबल है टू ऑल द कस्टमर। ठीक है, मॉनिटर फीचर अपडेट, कुछ भी नया फीचर आता रहता है तो उसको व्हाट्स न्यू में या ऐसे हेल्प में दिखाता रहेगा, आपको इस तरीके से अपडेट्स में दिखाएगा। That's it. We finished our presentation today, and now what we'll do is we'll try to create the account. So एक कहीं वीडियो देखा था मैंने अभी, let me see if I can find it out. आप लोग चाहें तो अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन लेना या साइन अप करना बहुत आसान है। I just watched the video. I'll just let me open this from history if I can. Yeah, let me. Yeah. So I'll simply go here and show aid is coming. Yeah, skip. तो साइन अप के लिए यार क्या कितना ऐड आते हैं इसमें? And this is not skippable, so you'll have to watch it. Okay, sign up is easy process. Two ads are coming. Okay, now it's allowing to skip. मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ जाना है, azure.microsoft.com पे जाना है। ठीक है, यहाँ से आपको आपका ईमेल देना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ ईमेल दे देंगे हम लोग। चाहे तो फोन नंबर भी दे सकते हैं क्रिएट न्यू करके। लेट्स गो एंड देन वी विल वेरीफाई इट बाय द कोड। तो हमारा कोई भी जीमेल अकाउंट या कुछ भी हो सकता है जिसमें हम वेरीफाई करेंगे, एक कोड मिलेगा हमें। ठीक है, उसको वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद में ऐसा शेप आएगा जिसका डायरेक्शन वो हैंड वाले डायरेक्शन में सेट करना है। ठीक है, और ये वो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर हमारा प्रोफाइल सेटअप करना है, हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम वो सब सेट करना है। ठीक है, यहाँ पे सारा कुछ हमें प्रोफाइल बनाना है। लेट्स गो, व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है, इस तरीके से हमें ये हमारा ईमेल और फ़ोन नंबर, फिर हमारा फ़ोन वेरिफिकेशन देना है हमें, चाहे टेक्स्ट या कॉल से। वेरिफिकेशन कोड आएगा, उसको वेरीफाई कर लेना। फिर हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कुछ भी नाम डालना है तो डाल देना है, इसमें कोई मैंडेटरी तो दे नहीं रखा है यहाँ पे। ठीक है, पेन आईडी ऑप्शनल है, तो मैंडेटरी नहीं है, शायद ये ऑप्शनल लिखा हुआ है। चलो, एड्रेस में एड्रेस डाल देना, उसके बाद में ठीक है, और यहाँ पे एग्रीमेंट हो जाएगा, प्राइवेसी स्टेटमेंट, और नेक्स्ट करना है। ठीक है, आपका फिर कार्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ डालना पड़ेगा आपको। वेरिफिकेशन, वो उसमें से 1 रुपी कटेगा आपको।
ठीक है, एंड देन यू कैन वेरीफाई, इट्स नॉट गोइंग टू बी डिटेक्टेड। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। चलो आगे जाओ। हाँ, तो ये वही बताएगा कितनी सर्विसेज आपको फ्री मिल रही है, 12 मंथ का, और वो सब है ना, नो ऑटोमेटिक चार्जेस। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आप अपना कार्ड का इंफॉर्मेशन डाल दें, उसको ऑथेंटिकेट कर लें। 2 रुपीज़ आपके डिडक्ट होंगे। एंड क्या लिखा था यहाँ पे ऐसा, वी माइट इवन नॉट बी चार्ज, यू कैन पॉज। ओके, ठीक है। ये वाला क्रेडिट हब में मिलेगा। ओके, दैट्स इट। तो ये एक प्रोसेस रहेगा साइन अप का। आप चाहें तो आज ही कर सकते हैं, या आप चाहें तो मंडे को भी कर सकते हैं। अगर कोई इश्यू आता है तो मंडे से पहले कर लें आप। तो ये आप चाहें तो यू कैन डू योरसेल्फ, और इफ यू वांट टू डू इट राइट नाउ एंड इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, वी कैन मे बी लुक इनटू इट। ठीक है, इस तरीके से आपका ये प्रोसेस चलेगा। ऑल राइट, सो एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? सर ये पीपीटी मिल सकती है? हाँ, ये पीपीटी मैं आपको वीकेंड पे भेज देता हूँ। आपको पूरी पीपीटी जो मैंने आपको कवर कराई, ये थ्योरेटिकली आपको हेल्प करेगी काफ़ी, तो आपका कोर अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। ठीक है, एंड जब हम प्रैक्टिकली जाएंगे तो हमें ये कोरिलेट कर पाएंगे कि जैसे जोन क्या होता है, एरिया क्या होता है ना, कौन सी सर्विस के बारे में क्या बेसिक डिटेल है। तो ये आपको AZ 900 में भी काफ़ी हेल्प करेगी अगर आप फंडामेंटल टारगेट करना चाहते हैं सर्टिफिकेशन। ओके, ओके, एंड या साइन अप जरूर करें। चाहे तो अभी कर लें। आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं एड्रेस कर लेता हूँ। अगर आप साइन अप करना चाहें तो आपके ब्राउजर पे ओपन करके स्टार्ट कर सकते हैं अभी। तो आई थिंक इजीली वी कैन यूज दिस, और एनीवन एल्स इज हैविंग एनी क्वेश्चन अदर देन दैट, वी कैन एड्रेस इट राइट नाउ। बाकी अभी तक जो हमारा कोर्स अभी तक जो हमने कवर किया है जैसे फंडामेंटल में, तो आपको कैसा लगा? आपको कोई एडवाइस है टीचिंग में कुछ चेंज करना चाहिए, या मींस बेसिकली वी आर टोटली गोइंग टू चेंज इट फ्रॉम नेक्स्ट वीक। तो जो फंडामेंटल था वो आपको कैसा लगा, वो आप थोड़ा सा फीडबैक दे देंगे तो उसमें मुझे थोड़ा अच्छा रहेगा। अगर आपका कोई भी कमेंट है, जैसे मैंने आपको ये कवर कराया जो बेसिक पार्ट वाला, जो अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू जो एक्सप्लेनेशन दिया, या लैंग्वेज से अगर कोई आपको बैरियर या कुछ प्रॉब्लम आई हो, एनीवन, एनीथिंग? सर ये हाँ जी। सर एक्चुअली मतलब फंडामेंटल तो बहुत मतलब अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है। मतलब वो तो पूरा न्यू ही मतलब न्यू ही था हमारे लिए एक्चुअली। ओके। क्योंकि अगर हम क्लाउड में अगर फर्स्ट टाइम में एंटर करना चाहते हैं राइट। तो पूरा न्यू था। तो अगर हम जैसे ही मतलब आपने अगर अभी ये थेरेटिकली पार्ट ले लिया, उसके बाद में हम जैसे ही हम ऐसा लग रहा है कि जब हम प्रैक्टिकल करेंगे उसमें हमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा, राइट? राइट। तो उस टाइम पे सिर्फ एक ही ये था कि उस टाइम पे हमें सिर्फ ये थेरोटिकल का जो पार्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब जो इंटरव्यू में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है, उस पे आप सिर्फ रिकॉल करके वो हमें बता दीजिए। हाँ, वो मैं बताता रहूँगा, क्योंकि देखो हमने फंडामेंटल इसीलिए कवर किया है, जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो हमें बीच-बीच में रुकना नहीं पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है ना, अगर जैसे आपको एरिया पता ही नहीं है, आपको ज़ोन पता ही नहीं है, तो जब हम रिसोर्स बनाते हैं या हम कुछ ऐसा काम करते हैं, तो हमें उसमें उस टाइम समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि हर जगह वापस से रिको अभी क्या हो गया ना, आपको मैंने एक बार पूरा कवर कर रहे थे एंड टू एंड जो भी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, तो वो आपको जब आप वो रिसोर्स बनाएँगे तो मैं उसको रिकॉल करता रहूँगा। मैं आपको जब बताऊँगा तो आपको थोड़ा ट्रिगर होगा, हाँ, हमने उसमें देखा था स्लाइड में या कहीं। तो आप गो यस, बैक करके देख सकते हैं। वो एक एडवांटेज रहेगा। यस सर। ओके। और हुँ, हुँ। प्रैक्टिकल में अगर आप आपके थ्रू एक करते हो, तो हमें हुँ, भी हुँ। एक प्रैक्टिस के लिए कुछ तो भी एज़ अ असाइनमेंट और कुछ तो भी आपके तरफ से मतलब एज़ अ प्रैक्टिस के लिए आप देते रहो ऐसा।
हाँ, वो तो लेकिन देखो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि जैसे आज हमने जैसे वर्चुअल मशीन पढ़ा या कोई भी रिसोर्स के बारे में पढ़ा, तो वो आपको घर पे रिपीट करके देखना है। अगर कोई क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट जब क्लास होगी, तो उस क्लास में मैं ज़रूर आपका वो क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करूँगा कि ये आपने क्या किया, या आप अपनी स्क्रीन शेयर करके भी बता सकते हैं। जैसे मेरे प्रीवियस बैच में कई बार होता था, कोई स्टूडेंट को अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आती थी या कुछ होता था, तो दे यूज्ड टू शेयर देयर स्क्रीन एंड शो इट टू मी, यस तो वो भी हम कर और सकते हैं। हुँ, हुँ। यस और आपके एंड से अगर हो सके तो एक मतलब अगर समझो एक सर्विस क्रिएट करके दिखाओ फॉर एन एग्जांपल कुछ भी आप एज हुँ, अ हुँ। होमवर्क करके समझो एक हुँ, कि हुँ। ये करके लाओ आप कल ऐसा अगर दे दिया तो वो हमें हेल्पफुल होगा हाँ, डिफरेंट आप वो हाँ वो बात आपकी सही है, लेकिन वो प्रैक्टिकली क्या हो जाता है ना, इतने लोगों से चेक नहीं करना पॉसिबल बनता है, इस टाइम नहीं में राइट इसलिए हाँ, इसलिए थोड़ा-सा वो डिफ़िकल्ट रहता है। बट मेरा यही रहेगा कि आप लोग को वैसे भी ये वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो यस आपको इतना सा करना है कि जो हमारी क्लासेस होंगी, उसके बाद में आप उसको हैंड्स ऑन एक बार करो, क्योंकि दिस इज़ व्हाट द रीज़न आई डिडन्ट आस्क यू टू रिचार्ज और मेक योर सब्सक्रिप्शन एक्टिव, क्योंकि अब आप सब्सक्रिप्शन करेंगे तो वो $200 आप यूज़ कर पाएँगे। साथ में मैं आपको प्रिकॉशनरी ये भी बताता रहूँगा कि आपको ध्यान रखना है, जब आप रिसोर्स क्रिएट करें, तो उसका वैल्यू ज़रूर देखें, क्योंकि आपके पास में लिमिटेड अमाउंट है और आपको 1 महीने उसको यूज़ करना है। तो ऐसा ना हो यस कि आपको आपने रात को वर्चुअल मशीन बनाई और सुबह तक पैसा अकाउंट साफ हो गया, तो वैसा नहीं यस करना है। तो इसलिए जब आपको सीखना है, तो मैं आपको जब रिसोर्स बनाऊँगा, इवन आई विल बी स्पेंडिंग ऑन दैट, बिकॉज़ मेरा पेड अकाउंट है, तो आई विल क्रिएट व्हाइल द क्लास इज़ देयर एंड बिफोर द क्लास एंड आई विल ऑलवेज़ डिलीट दैट। तो उससे आपको ये पता चलेगा कि ये प्रैक्टिस आपको भी एडॉप्ट करनी है, ठीक है? क्योंकि ओके अगर आप किसी कंपनी में जॉइन करते हैं, तो उनका मेन फोकस यही रहेगा कि आप कितना एफिशिएंटली काम करते हैं, और दूसरा आप कोई अननेसेसरी रिसोर्स चला के तो नहीं छोड़ रखे, क्योंकि बिलिंग कंपनी की होगी उस केस में, यस यस समझे? वो तो बेस्ट ये एक प्रैक्टिसेस भी कौन सा रहेगा वो भी आप बता दीजिए हाँ, मतलब क्या ज़रूर बेस्ट वो प्रैक्टिसेस मैं होगा बताऊँगा। राइट, यस, यस डेफिनिटली वी विल टॉक अबाउट दिस एज़ वेल। यस, यस एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चन? हेलो। यस, शुभम। सर जब आप कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करोगे ना मतलब ये फंडामेंटल में आपने कई कई बार किया है मतलब हुँ, हुँ। एडब्ल्यूएस से रिलेटेड भी कीजिए कभी कभी क्या होता है कि एडब्ल्यूएस के कोई कोई टॉपिक्स पता कॉन्सेप्ट पता रहते हैं जो अज्यूर में सिमिलर है तो वो समझने में तकलीफ नहीं होती है जल्दी समझ में आ जाता है तो कभी कोई नहीं। हुँ, रेप्लिकेट हुँ। होता है जैसे हुँ, हुँ। स्टोरेज का हो गया तो हुँ, हुँ। अज्यूर में इसको पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है एडब्ल्यूएस में उसको ये बोला जाता है तो वो कभी भी समझ में आ जाती है कि हाँ एडब्ल्यूएस में ऐसा है तो अज्यूर में ऐसा होता है करके देखो, एक एक पॉइंट तो ये हो जाता है कि एज़्योर और एडब्ल्यूएस का अगर हम कंपैरिज़न करते हैं, तो जो सर्विसेज़ एज़्योर में अवेलेबल है, वो डिफरेंट नेम से आपकी एडब्ल्यूएस में है ही है। मीन्स इट्स ऑलवेज़ देयर। सेम सिमिलर सर्विस आपको मिलेगी ही मिलेगी, बट विद डिफरेंट नेम। दैट्स इट। जैसे हमारे इसमें आप देख लें, वर्चुअल मशीन है, तो उसमें भी वर्चुअल मशीन है, इसमें वर्चुअल नेटवर्क है, तो उसमें शायद लिटिल बिट डिफरेंट नेम है उसका। वीपीसी बोलते हैं उसको, वर्चुअल पीपीसी प्राइवेट नेटवर्क वर्चुअल प्राइवेट है ना? नेट राइट करेक्ट। तो उस तरीके से नेमिंग डिफरेंस होगा। जैसे वहाँ लैम्बडा सर्विस राइट होती है, तो यहाँ पे शायद फंक्शन होता है, एज़्योर फंक्शन। तो इस तरीके से डेफिनिटली इट्स देयर, बट नेमिंग्स आर डिफरेंट, कॉन्फ़िगरेशन में भी लिटिल बिट डिफरेंट, कैपेबिलिटीज़ में भी डिफरेंट, प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट। तो उसको क्या है कि सभी के लिए वो काम नहीं आने वाली है। ये एक थोड़ा-सा है। आप क्योंकि हो सकता है एडब्ल्यूएस बैकग्राउंड से आते हैं, तो एनीवेज़ यू विल बी एबल टू कनेक्ट इट विद द एडब्ल्यूएस। तो वो आपके लिए सर तो ईज़ी है। हुँ, हुँ। बट कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो नो मतलब क्या इंटरनेट पर्सपेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है बस वो पॉइंट्स आपने हाईलाइट कर देना दैट्स इट ठीक है, कर लेंगे डेफिनिटली, नो इश्यूज़, यस, सर्टेनली। ठीक है, ऑलराइट, सो गाइज़, you just sign up with this account whenever you have time. You will require the credit card as we have seen in the video. तो वो आप करके छोड़ें, और मंडे तक आप रेडी रखें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो मैं शुरू में आते ही ये ले लूँगा, ठीक है? और एक क्वेश्चन है मेरा कि आप में से कितने लोग, यू कैन रेज़ योर हैंड, कितने लोग नए हैं एज़्योर में या टेक्नोलॉजी फील्ड में बेसिकली? ओके, सोमनाथ 1 2 3 कितने हो गए यार? 5 टोटल, 6 7
नंबरिंग कैसे है ये कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ओके जस्ट लेट मी सी टू 18 काफी लोग न्यू हैं जो कि टेक्नोलॉजी फील्ड में बेसिकली न्यू है राइट। ओके 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 तो मेजोरिटी है आप लोग की आउट ऑफ 25 में से आपने लगभग 17 18 17 ओके सो आप लोग का बैकग्राउंड नॉन टेक्निकल फील्ड से आप आए हैं कैसे क्या है अगर आप में से कोई बोल सके आई मीन यू कैन पुट सर योर हैंड्स डाउन या नॉन टेक नहीं है, वो मोस्ट ऑफ द इसमें से टेक भी है और नॉन टेक भी है। टेक में अच्छा ऐसा है कि क्लाउड सर्विसेज में किन्होंने काम किया नहीं है, दूसरे अच्छा फील्ड में एज ए डेवलपर और सपोर्ट ऐसे में काम किया है 1 बहुत 2 लोगों ने। 3 4 5 अच्छा ठीक है ठीक है यस, ठीक है और मोस्ट ऑफ द आईटी बैकग्राउंड में से है, जिन्होंने हम्म। सिर्फ डेवलपमेंट में काम किया है, और मोस्ट ऑफ द न्यू है डायरेक्टली, ऐसा कुछ तो है। ओके 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 यस ठीक है अगर आपने आईटी बैकग्राउंड में जैसे काम किया है और आपको बेसिक्स पता है तो आपके लिए इजी हो जाएगा उस केस में उसमें इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा क्योंकि डेफिनेटली लाइक बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग बेसिक्स ऑफ लाइक डेटाबेस सिस्टम मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम ये थोड़ा बहुत अगर आपको पता है तो आपके लिए इजी है बट हाँ अगर आप बिल्कुल ही नए जगह से हैं तो थोड़ा सा आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा आपको समझ तो आ जाएगा डेफिनेटली आई विल cover it as much as I can do but still if you are from totally different background तो थोड़ा सा आपको मेहनत ज्यादा करना है right all right so I think then we can conclude this session and next session we will have on Monday and admin are you there I'm not sure if admin left or admin is there ठीक है आई थिंक ऑन मंडे वी विल हैव अ डिफरेंट यूआरएल आई बिलीव और मे बी द सेम यूआरएल बट I will have different account to use maybe probably anyways on that note we can conclude this session so see you on Monday thank you everyone take care bye bye थैंक यू सर, थैंक यू। thank you English.